وہ درستی سے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہین اپنا حلق تر کرتی کبھی ادھر دیکھ رہی تھی تو کبھی ادھر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسے حالات میں کیا کرے۔ وہ میرے کمرے میں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ ابتہاج سختی سے بولا، لڑکی تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دیکھنا تمہیں یہاں سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ابتہاج لغاری نہیں۔ اسے وہ لڑکی بہت معصوم لگی تھی، مگر یہ بھی خوف تھا کہ یہ معصوم دکھائی دینے والی لڑکیاں ہی سب سے زیادہ چالاک ہوتی ہیں۔ ان کے پینترے ہوتے ہیں کہ کسی بھی امیر لڑکی کو پھنسانے کے لیے یا تو اس پر کوئی الزام لگا دیتی ہیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو خود ہی اس کے راستے میں آ جاتی ہیں، تاکہ کسی طرح سے ان کے ہاتھوں ان لڑکیوں کو چوٹ پہنچے اور بدلے میں وہ اس سے پیسے لے سکے۔ ماہین سہمی نگاہوں سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ پورے ہال میں لڑکیوں کا ایک رش تھا جو خاموشی سے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، بے شک کیمرے میں دیکھ لو، یہ میرے کمرے میں خود داخل ہوا تھا۔ بالآخر ماہین نے بولنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے بولا، ہاں کیمرے میں تو دیکھوں گا میں، ویسے کاش کیمرے کمرے میں بھی لگے ہوتے جہاں پر یہ سب ریکارڈ ہوتا کہ تم نے میرے بھائی کا سر پھاڑا ہے، مگر افسوس وہ کیمرے صرف گیلری میں لگے ہیں۔ ابتہاج نے سنجیدگی سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، اس نے پہلے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کے پینترے۔ اگر وہ کمرے میں چلا گیا تھا تو تم باہر آ جاتی یا کچھ اور کرتی، مگر تم نے موقع دیکھ کر اسے زخمی کر دیا تاکہ تمہیں پیسے چاہیے تھے۔ مانگ لیتی تو دے دیتا۔ اس بات پر ماہین کو ایسی آگ لگی کہ وہ غصے سے بولی، آپ کے گھر نہیں گئی تھی میں یہ سب کرنے، اپنے آوارہ بھائی کو آج اگر لگام ڈال کر رکھی ہوتی تو اس بات کی مہلت ہی نہ ملتی، اور جو کرنا ہے کر لیں، دیکھ لوں گی میں۔ تحمل سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر آپ کی باتیں اور انداز دونوں ہی بگڑے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی تو ابتہاج نے اس کی کلائی تھام کر اسے واپس کھینچنا چاہا، ساتھ ہی سپاٹ لہجے میں بولا، اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ مجھے بات کرنی ہے اور سکون سے یہاں کھڑی ہو کر مجھ سے بات کرو۔ ماہین کے لیے یہ برداشت کی آخری حد تھی۔ اس نے گھوم کر ایک زوردار تھپڑ ابتہاج کے چہرے پر رسید کیا اور سختی سے بولی، چھوٹے بھائی نے جو کیا ہے اب سمجھی کہ اس کا قصور نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جائیداد نہیں ہوں میں کسی کی کہ ایک کا دل چاہا کمرے میں آ گیا، دوسرے کا دل چاہا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کہہ کر درستی سے اس نے ابتہاج کے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوائی اور تیزی سے ہال روم سے نکل گئی، جبکہ پیچھے ابتہاج انتہائی شوق کے عالم میں کھڑا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب سمجھ آیا تو ارد گرد لڑکیوں کے ہجوم پر اس کے نگاہ پڑی تو وہ غصے میں مٹھیاں بھینچ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ وہ آخری جملہ تھا جو اس نے بلڈنگ سے نکلتے سختی سے کہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس شہر کا ایک نامی گرامی بزنس ٹائکون تھا، اور اس معمولی سے دیہاتی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مارے غصے کے وہ یہی سب سوچ رہا تھا، یہی سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آدھے راستے میں جا کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی، کیونکہ مزید وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکے گا، سو ڈرائیور کو فون کر کے لوکیشن سینڈ کی، پھر اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا سر ٹکا کر گہرے سانس لینے لگا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی میں پانی تلاش کیا تو پانی والی بوتل بھی نہیں پڑی تھی۔ اس نے متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑائیں تو قریب ہی ایک ٹھیلے والا شربت لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے کبھی بھی ٹھیلوں سے شربت یا عام پانی نہیں پیا تھا، مگر اس وقت پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ آدمی کو ایک شربت کا گلاس بول کر وہ واپس سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگا۔ بس ایک مرتبہ تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دیکھنا۔ جب تک شربت آیا تو ڈرائیور بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ شربت پینے لگا تو ڈرائیور جلدی سے بولا، سر آپ ٹھیلے سے کیوں پی رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے جوس لے آتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ ابتہاج جو شربت کا گلاس ابھی منہ تک لے کر بھی نہیں گیا تھا، اس نے زور سے سڑک پر وہ گلاس پٹخ دیا اور والیٹ میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر ٹھیلے والے کو دینے کے بعد غصے سے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بولا، نکل جاؤ ابھی میری گاڑی سے۔
अच्छा सब ने मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। कोई बात करके चला जाता है और कोई। इस कोई से आगे वो कस्तन खामोश हो गया। ड्राइवर उससे माफ़ी मांगने लगा तो इब्तिहाज सख्ती से बोला, फजलदीन अभी चले जाओ, ये ना हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनते ही ड्राइवर फौरन से पहले गाड़ी से उतर गया और वो पूरी स्पीड से गाड़ी चलाता वहाँ से निकल आया। उसका रुख अभी जिम की तरफ था, मगर वो जाता तो किसी न किसी की शामत आ जानी थी। वैसे भी मॉम की तबीयत उन दिनों सही नहीं थी, सो वो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता था। जिम जाकर उसने अपना सारा गुस्सा वर्कआउट करते हुए निकाला। वो ऐसा ही था, अपना गुस्सा लोगों के बजाय वर्कआउट पर लगा देता। वो लड़की समझती क्या है खुद को, ना होलिया ऐसा कि मेरे सामने खड़ी रह सके, ना ही स्टेटस ऐसा, फिर ये गरूर, और अब ये दबदबा किस बात का। उसे तो ढंग से बात भी करनी नहीं आती। फिर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया तो लगाया कैसे, मैं जान ले लूंगा उसकी। वो अजीबोगरीब सोचों में खड़ा हुआ था। उसे अमरोज़ का भी इल्म था कि वो ऐसा ही शोख तबीयत का शख्स है, मगर फिर भी कैसा भी था, वो उसका भाई था और इब्तिहाज को अपना भाई दुनिया की हर शय से प्यारा था। वो हमेशा ऐसे ही करता था। अमरोज़ की गलती होती तो उसे संभाल लेता। दुनिया के सामने उसने अमरोज़ को कभी बुरा भला नहीं कहा था, मगर जब अकेले होते तो वो उस पर उन गलतियों के लिए हाथ भी उठा लेता था। रात से वो हॉस्पिटल था। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि घर लेकर जा सकते हैं, मगर वो नहीं माना, क्योंकि जानता था अगर अमरोज़ घर आ गया तो वो उस पर गुस्सा करेगा। वैसे भी अभी उसकी हालत गुस्सा बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। माहीन ने जो किया था वो बहुत ज़्यादा था। जिम से सीधा वो हॉस्पिटल गया तो देखा सामने अमरोज़ के पास एक लड़की बैठी हुई है और वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। ये देखकर इब्तिहाज का जबड़ा सख्ती से तन गया। इसकी जुर्रत कैसे हुई? कल तो ये चोट खा कर आ रहा है और आज फिर से इन्हीं लड़कियों के चक्कर में फंस चुका है। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और संजीदगी से बोला, चले मैडम, अब अपने घर जाएं। और अमरोज़ तुम भी उठो, डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें। अमरोज़ हैरानी से कभी अपने भाई को देखता तो कभी उस लड़की को, जो काफ़ी अचंभे का शिकार लग रही थी। मारिया, ये मेरे बड़े भाई हैं। उसने जल्दी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, जिस पर इब्तिहाज बेफर कर बोला, जानती होगी मुझे, वो तभी तो तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली। इन लड़कियों की यही आदत होती है, जहाँ अमीर लड़का देखा उसके पीछे पड़ जाती हैं। बात करते करते उसने पहले अमरोज़ को देखा और फिर उस लड़की को। दोनों ही हैरत से मुंह खोले उसकी बात सुन रहे थे। आप अभी तक गई नहीं? मुझे लगा जा चुकी होंगी। आपकी मर्तबा इब्तिहाज ने हैरान होने का ड्रामा किया तो वो लड़की अपना बैग खींचकर टिक टिक करती वहाँ से चली गई। भाई, यार ये क्या किया आपने? बड़ी मुश्किल से मनाया था। जानते हैं कि आप इसे मारिया सहगल है वो। अमरोज़ कभी उस लड़की की पुश्त को देखता तो कभी इब्तिहाज को, जिस पर रत्ती बराबर भी इस बात पर सुनकर फर्क नहीं पड़ा था। अमरोज़ तो मुझे ये बताओ, ये हॉस्पिटल में पिटोगे या घर तक इंतज़ार कर लोगे? इब्तिहाज ने इंतहाई गुस्से से कहा तो अमरोज़ भी खामोश हो गया। वो दोनों जैसे भी थे, अमरोज़ इस वक्त खामोश हो जाता जब इब्तिहाज वाकई गुस्से में होता, और इस वक्त वो गुस्से में था। खामोशी से दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो अमरोज़ गाड़ी में जा बैठा, जबकि इब्तिहाज उसके बिल क्लियर करने लगा। जब वो गाड़ी में आया तो अमरोज़ ने पूछा, क्या बात है, इतने गुस्से में लग रहे हैं? स्टीयरिंग व्हील संभालते वो सपाट लहजे में बोला, अमरोज़ मुझे घर तक खामोशी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात का एहतराम करोगे। बाकी जो भी बात है वो घर चल कर होगी, और मामा को खबरदार अपने स्कैंडल का मत बताना। ये पट्टी उतारो। साथ ही उसने पट्टी की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो एकदम से पीछे हो गया। यार भाई, क्या करते हैं? इंतहाई ज़ख्मी हालत में हूँ मैं। ये सुनते ही इब्तिहाज ने एक ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर दे मारा, जिससे वो औंधा हो गया। जैसे ही वो औंधा हुआ तो इब्तिहाज ने वो पट्टी खींचकर उसके सर से उतार दी। पट्टी के नीचे इंतहाई छोटा सा ज़ख़म था, जिस पर सनी प्लास लगाकर इब्तिहाज ने ज़ख़म ढांप दिया था। 5 मिनट तक तो वो मुक्का खाने के बाद अमरोज़ कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद भी वो सीधा होकर बैठा तो घर का पूरा रास्ता खामोशी से कटा।
दोनों में से किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। घर पहुंचकर मामा ने उन दोनों से पूछा कहाँ थे वो, तो इब्तिहाज ने अमरोज को उसके कमरे में भेज दिया और खुद उनके साथ बातें करने लगा। इब्तिहाज, बताओ मुझे कहाँ था ये 2 रातों से, उन्होंने टोकते हुए पूछा। तो वो जल्दी से बोला, आपका बेटा अब काम करने वाला हो गया है, मीटिंग के लिए गया हुआ था, मगर अफसोस की बात बताऊं, सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। पर खैर, गलतियों से ही इंसान सीखता है। अच्छा आप बताएं, दवाई खाई आपने या नहीं? इब्तिहाज, तुम झूठ बोल रहे हो ना, उसकी नाक पर सुर्ख निशान है, मामा ने संजीदगी से कहा। तो वो जल्दी से बोला, मेरे भाई के नाक, मुंह, चेहरे पर सिर्फ मेरी मार का निशान ही हो सकता है और किसी का नहीं। बस थोड़ा समझाया था और कुछ नहीं। इब्तिहाज, तमीज से रहा करो, वो बागी हो गया तो संभलेगा नहीं। उसने फौरन से माँ की बात टोक दी और कहा, आइंदा ख्याल रखूंगा। साथ ही वहां से उठकर ऊपर अपने कमरे में आ गया, क्योंकि वो जानता था अगर मजीद वहां बैठा तो मामा का लेक्चर शुरू हो जाएगा और वो कम से कम आधा घंटा अपने भाई से नरमी करने का सबक देती रहेंगी। मगर इस वक्त वो ऐसी किसी भी लेक्चर के मूड में नहीं था। अभी तो उसे अमरोज की खबर लेनी थी। माहिन कमरे में आई तो उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। अभी उसे शहर आए देर ही कितनी हुई थी, सिर्फ 1 हफ्ता, और इस 1 हफ्ते में क्या कुछ नहीं हो गया। वो बेहद कनूती हो रही थी। नहीं नहीं, ये शहर मेरे लिए नहीं बना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने गांव जाऊंगी वापस, फिर देखूंगी कहीं और दाखला हो गया तो उस शहर चली जाऊंगी, मगर यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ सही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इन अमीर लोगों से कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? अगर अब्बा को पता चला कि यहाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो तो टूट ही जाएंगे। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, मुझे उसे गनीमत समझकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। खुद से ही बातें करते करते उसने बैग उठाया और उसमें अपना सामान भरने लगी। उस वक्त उसे वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे में शैला, उसकी रूममेट, आई तो उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? देखो शैला, मुझसे गलती हो गई है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे उस अमीरजादे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उस वक्त तो जज्बाती होकर मैंने फैसला कर लिया, मगर अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रहूँगी। ये इंसानों के रहने की जगह ही नहीं है, जानवर रहते हैं यहाँ तो। देखा नहीं तुमने कैसे लड़कियों से मिलने के लिए तरह तरह के लड़के आते हैं यहाँ पर? वो बोलती जा रही थी और साथ साथ अपना सामान भी बैग में भर रही थी, क्योंकि वो जाने का फैसला कर चुकी थी। शैला आगे बढ़ी और उसने उसे बैग में कपड़े रखने से रोक दिया। मत रोको मुझे जाना है। शैला ने कोई सवाल जवाब किए बगैर उसका हाथ नरमी से थामा और अपने साथ लेकर बिस्तर पर बैठ गई। माहीन, कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। हॉल में कैमरा लगा है तो पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर उसने कुछ किया तो हम सबूत दे सकते हैं। उसने पहले तुम्हारा हाथ पकड़ा था। मगर शैला, वो बहुत पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। मैं तो गरीब सी हूँ, मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। खामोश हो जाओ माहीन, बिला वजह सर दर्द मत करो, अपना भी और मेरा भी। कुछ नहीं करता वो। गांव जाकर क्या बताओगी कि एक लड़का आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुस आया, तुमने उसे मारा तो अगले दिन उसका भाई आ गया, उसने तुम्हारी कलाई थामी तो तुमने थप्पड़ लगा दिया। अब उससे डरकर गांव चली गई हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है वो कहीं बदला ना ले ले। कमान माहीन, शहर में आए रोज ऐसी बातें होती रहती हैं, ज्यादा सवार मत करो खुद पर इन बातों को, बल्कि मजबूत बनो। अगर आज तुम 5% मजबूत हो तो कल के लिए खुद को 10% मजबूत करो। समझ रही हो? शैला ने मजबूत लहजे में कहा तो वो रोहासी बोलकर बोली, क्या वो कुछ करेगा तो नहीं मेरे साथ? नहीं मेरी जान, कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ किया तो हम उसे समझ लेंगे। वैसे भी मेरी पुप्पो एक NGO में है जो खवातीन के हुकूक के लिए काम करती हैं। बस देखना, उस NGO की मदद लेने की देर है, सभी हमारे हक में होंगे। मगर यूं मत जाओ, तुमने ही मुझे बताया था ना कि CSS करने का तुम्हारा ख्वाब है, तो उसे पूरा करो। शाबाश, ऐसे मत करो। ये भी बताया था ना कि तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सोने की बालियां बेच दी थी तुम्हारा एकेडमी में दाखिला करवाने के लिए।
تو اب مجھے بتاؤ، کیا تمہاری ماں کی بالیاں اتنی حقیر ہیں کہ تم ان سے صرف 1 ہفتہ یہاں رہ سکی ہو؟ شیلا کی باتوں سے آہستہ آہستہ ماہین کا مائنڈ واش ہو رہا تھا۔ شیلا، کیا سچ میں اگر کچھ ہوا تو تمہاری پھپھو ہماری مدد کریں گی؟ اس نے یقین دہانی کے لیے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، سچ میں پوچھیں گی، اور پریشان مت ہو، CSS کرنے والے اتنے بزدل نہیں ہوتے۔ آگے تو نہ جانے تمہارے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہوں گے، تمہیں ان سب سے لڑنا ہوگا، اور جب نہیں لڑ سکیں تو بتاؤ، کیا نوکری چھوڑ کر گاؤں بھاگ جاؤ گی؟ اس بات پر ماہی نے نفی میں سر ہلا دیا تو شیلا مسکرا دی، پھر اسے اٹھ کر پانی پلایا، تب جا کر ماہین سنبھل گئی۔ جب وہ پرسکون ہوئی تو ایک دم سے شیلا کے گلے لگ گئی اور نرمی سے بولی، تھینکس شیلا، اگر آج تم نہ ہوتی تو میں سچ مچ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی۔ جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں مجھے پتہ لگ گیا تھا، باہر تم جتنی بھی جنگلی بلی بن رہی تھی، کمرے میں جاتے ہی تم نے بھیگی بلی بن جانا ہے۔ مگر ایک بات کہوں، اچھا کیا، ایسے رئیس زادوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، خود کو نہ جانے سمجھتے کیا ہیں۔ حالانکہ شیلا یہ بات اچھے سے سمجھتی تھی کہ ماہین کو تھپڑ نہیں لگانا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا ہے، لیکن وہ یہ بات اسے بتاتی تو ماہین ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکتی اور بھاگ جاتی۔ پر شیلا ایسا نہیں چاہتی تھی، اسے ماہین اچھی لگتی تھی اور وہ اس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ شہر کے ماحول کے مطابق اسے نہیں لگتا تھا اب کوئی لڑکی ایسی ہے جس سے خالص دوستی کی جائے، مگر ماہین ویسی تھی، سو شیلا اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شام کو وہ اسے اپنے ساتھ پھپھو کے گھر لے گئی۔ ماہین جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس لیے شیلا کے ساتھ گئی، اور شیلا بھی اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تاکہ وہ سمجھ لے کہ اس کی پھپھو واقعی میں ان کی مدد کر سکتی ہیں اگر مستقبل میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو۔ ویسے شیلا نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی، بس ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ وہاں سے جب دونوں نکلیں تو ماہین کافی حد تک پرسکون تھی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ خاتون اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ شیلا کے پاس ان کا نمبر تو تھا ہی، مگر ماہین نے بھی اسی وقت ان کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ وہ اپارٹمنٹ میں واپس جا رہی تھی جب اچانک سے ان کی ٹیکسی تلے ایک لڑکی آتے آتے بچ گئی۔ غلطی ساری اسی لڑکی کی تھی۔ وہ باہر نکلی تو لڑکی بے حد ماڈرن تھی، مگر اسے سڑک پر گرنے کی وجہ سے کچھ چوٹیں آ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور اس لڑکی کے آگے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگا، مگر وہ لڑکی مسلسل بول رہی تھی کہ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ تمہارے باپ کی سڑک ہے کیا جو اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے ہو؟ ماہین اور شیلا نے اس لڑکی کو پرسکون کیا تو وہ انہیں بھی سنانے لگی کہ کیسے تم ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہو، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماہین نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس لڑکی کے پیر پر چوٹ لگی تھی اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ لائیں، مجھے دکھائیں۔ اس لڑکی کا پیر دیکھنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ کوئی بات نہیں، دکھائیں مجھے۔ تم میرے پیر کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہو؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے دکھا دیں۔ یہ کہہ کر ماہین نے پیر دیکھا تو زیادہ چوٹ نہیں تھی، لیکن خون بہہ رہا تھا، سو اس نے اپنے پرس میں سے اپنا رومال نکال کر اس لڑکی کے پیر پر باندھ دیا۔ شیلا خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس لڑکی کی پٹی باندھ کر وہ اسی ٹیکسی میں اسے ہاسپٹل لے آئے۔ وہ ڈرائیور کافی شرمندہ تھا۔ وہاں ہاسپٹل میں پٹی بندھواتے ہوئے اس لڑکی کے موبائل پر کسی کا فون آیا تو اس نے اس حادثے کا بتایا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب ایک لڑکا ان کے وارڈ میں آیا اور جلدی سے بولا، کیا ہوا ہے رمشا تمہیں؟ میں کب سے کیفے پر ویٹ کر رہا تھا تمہارا، اور تم یہاں پہنچ گئیں۔ ماہین اور شیلا باہر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے حادثے کی تفصیل بتائی۔ تب تک ماہین اور شیلا بھی کمرے میں آ گئی، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کی نظر امروز پر پڑی۔ اسے دیکھ کر دونوں وہیں پر رک گئیں۔ رمشا جلدی سے بولی، یہی 2 لڑکیاں ہیں جنہوں نے میری مدد کی ہے۔ امروز اور وہ دونوں اپنی جگہ چپ کے چپ تھے۔ کیا بات ہے امروز، تم ایک دم سے چپ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ رمشا نے پوچھا تو وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس جان اپنا خیال رکھا کرو نا۔ اچھا رمشا، ہم چلتے ہیں، شیلا جلدی سے بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حالات اختیار سے باہر ہوں۔
सो वो माहिन को वहां से लेकर जितनी जल्दी हो सका था ले जाना चाहती थी। माहिन भी जाने के लिए रुकी तो रिमशा ने मना कर दिया और कहा, नहीं रुको, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। वैसे भी मैं डिनर करने ही जा रही थी अमरोज के साथ, चलो तुम लोग भी हमें ज्वाइन करो। मगर माहिन ने मना कर दिया और कहा, नहीं, हमारा हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है, सो हमें जाना है, बस तुम ठीक हो इतना काफ़ी है। उसके बाद उन्होंने रिमशा की नहीं सुनी और फुर्ती से वहाँ से निकल आई, जबकि वो पीछे हैरानी से अमरोज को मुखातिब करते बोली, अजीब लड़कियां हैं, खाना तो खा कर जाती ना। मगर वो सर झुकाए उनकी पट्टी देखता बोला, अच्छा हुआ चली गई। क्या मतलब? यार उन्होंने मेरी मदद की है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मदद की है और तुम इतने रूड हो रहे हो। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ही कहती हो प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम दोनों हैं ना, अगर उन्होंने मदद की तो उनकी टैक्सी के नीचे ही आई थी तुम। बाकी खैर छोड़ो, हम उन पर अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें। बताओ कहाँ चलोगी अब मेरे साथ? ये कहकर उसने बड़े सुकून से बात पलट दी, वरना एक मर्तबा तो माहिन को सामने देखकर उसे रात वाला वाक़या पूरी ज़ेर ज़बर के साथ याद आ गया था। वो नशे में था, मगर जब माहिन ने गुलदान उसके सर में दे मारा तो सारा मज़ा उड़न छू हो गया। तभी अपने दिमाग को तेज़ चलाते हुए वो गिरकर बेहोश होने का ड्रामा करने लगा, क्योंकि जानता था अगर होश में रहता तो वो लड़की उसकी मज़ीद धुलाई भी कर सकती थी। सो उसने बरवक्त फैसला किया और आज अपनी जान बचाकर उसके सामने जिंदा खड़ा था। वो अस्पताल से बाहर निकली तो काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उनका सामना एक मर्तबा फिर से अमरोज के साथ हुआ था। शैला, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? यानी मुझे यूं मार कर कहीं फेंक दे बदला लेने के लिए? शैला ने चिढ़कर उसे देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, देख नहीं रही थी उसकी गर्लफ्रेंड थी। बाकी तुम दिमाग पर सवार ना करो, जो होगा वो देखा जाएगा, समझी? माहिन खामोश हो गई, मगर उसके दिल में वही सब चल रहा था कि कहीं अमरोज उसका पीछा ना कर रहा हो। 2-3 माह यूं ही गुजर गए, जब अचानक से उसका सामना इब्तिहाज के साथ हुआ। इब्तिहाज ने उस वाक़े के बाद कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे एहसास हो गया कि वो गलती पर था। किसी को जाने बगैर यूं इल्ज़ाम लगा देना कहाँ की इंसानियत है। उस रोज़ वो अपने एक दोस्त को लेने एकेडमी गया था, जिसे हाल में ही CSS करने का शौक़ हुआ था। सो वो उसे लेने एकेडमी गया तो देखा सामने माहिन भी मौजूद थी और गेट से बाहर निकलकर रिक्शे में बैठ रही थी। तभी अफसल आ गया तो इब्तिहाज ने माहिन के मुतालिक पूछा, तो वो जल्दी से बोला, उसके हुलिये पर मत जाना, दिखने में मासूम है, वरना क्लास में टॉपर है टॉपर। हर एक के साथ ऐसे बहस करती है कि दांतों तले पसीना आ जाता है। लगता तो नहीं है, इब्तिहाज ने सोचते हुए कहा। तब तक माहिन का रिक्शा भी वहां से जा चुका था। तो ऐसा करो, एक आधी मुलाकात करवा देता हूं तुम लोगों की, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। उस पर इब्तिहाज ने फ़ौरन इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपनी और माहिन की पहली मुलाकात अच्छे से याद थी, जिसमें उसने बड़ी बेदर्दी से इसकी गाल पर थप्पड़ रसीद किया था। वो गाड़ी चलाकर अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे जब देखा कि माहिन का रिक्शा उलट चुका है। इब्तिहाज जल्दी से बाहर निकला तो देखा वो ठीक थी, अलबत्ता उसके पैर में बुरी तरह मोच आ गई थी। वो पहले तो इब्तिहाज को देखकर सहम सी गई, लेकिन साथ ही उसकी निगाह अफजल पर पड़ी तो कुछ सांस आया। मैंने कैसे सोच लिया जहां आप होंगी वहां पर कुछ सही हो सकता है। आप देखे ना, बेचारे रिक्शे वाले का रिक्शा ही उलट कर रख दिया। इब्तिहाज की बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अफजल को देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं इन्हें? वो जल्दी से बोला, हाँ ये मेरा दोस्त है। तो लेकर जाएं ना इन्हें यहाँ से, अगर मदद नहीं कर सकते तो बिला वजह का तमाशा मत लगाएं यहाँ पर। वो इंतहाई सख्ती से बोली थी, जिस पर इब्तिहाज को बहुत ज़्यादा हंसी आई। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की भी कोशिश की, मगर फिर भी ना कर सका। माहिन ये देखकर सुलग उठी। वो खुद ही वहाँ पर दूसरा रिक्शा रोक कर उसमें बैठी और चली गई। इब्तिहाज को उसके जाते ही हंसी का एक शदीद दौरा पड़ा। यार क्या पागल हो गया है तू, जो ऐसी हरकतें कर रहा है? मैंने आज से पहले तुझे ऐसे नहीं देखा, फिर अब क्या हो गया यूं अचानक से उस लड़की को देखकर? मेरा भाई परेशान ना हो तो, बस मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब रहता था उसकी तरफ,
जो ऐसे ही चुका दिया। बस अब कोई शिकवा नहीं रहा। हंसने की वजह से उसकी आंखों में पानी आ चुका था, जो उसने फौरन से साफ किया और अफजल को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। हराने के बाद भी उसकी निगाहों में माहीन अटक कर रह गई थी। कैसे गुस्से से और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था वो नहीं भूला था, बल्कि जब जब माहीन की शक्ल याद आती तो उसे फिर से हंसी आ जाती। खैर, उसने मोबाइल उठाया तो उसकी फेसबुक पर आईडी सर्च करने लगा, मगर उसे कहीं पर भी वो ना मिली। मोबाइल रखा तो एकदम से चौंक गया। ये मैं क्यों उसे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और 2 घंटे हो गए सिर्फ उसी के मुतालिक सोचता चला जा रहा हूँ। ये सब दिमाग में आते ही वो उठ बैठा और जल्दी से पानी पिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही आज जो उसके साथ हुआ वो बहुत अच्छा था, इसीलिए याद आ रही है। उसने अपनी सोचों की नफी की तो दिमाग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम उसे पसंद करते हो इसीलिए उसे सोच रहे हो। पसंद? नहीं नहीं, मैं नहीं करता उसे पसंद, मगर तुम करते हो। दिमाग दलीलें देने लगा। तुमने आज तक ऐसी लड़की की ही चाह की थी जो पाक हो, गैर लड़कों से दूर रहती हो, और माहीन में तुम्हें वो लड़की मिल गई है, क्योंकि अगर वो भी आम लड़कियों की तरह होती तो तुम्हें थप्पड़ लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचती, या ज़्यादा ही करती तो तुमसे पैसे मांग लेती। मगर जब वो तुम्हें देख रही थी तब उसकी निगाहों में बिल्कुल नरमी नहीं थी, बल्कि उनमें तलखी थी। अफजल को देखते वो तलखी नहीं थी, मगर निगाहें सख्त थी। ऐसी भी बिल्कुल नहीं थी जिससे वो किसी मर्द को रुझाने की कोशिश करे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने जल्दी से कहा तो दिमाग दुहाई देते बोला। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर ये बताओ, तुमने उस एकेडमी से उसे क्यों नहीं निकलवाया? तुम्हारी ही एकेडमी थी ना, उसमें तुम्हारा भी तो बराबर का शेयर है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा यहाँ से निकालूंगा, वो कहीं और चली जाएगी। वैसे जो भी था, गलती अमरोज की भी थी, उसने दिमाग को जवाब दिया तो वो हंसते हुए बोला। बस भाई पड़ गया है तो भी इश्क मोहब्बत के चक्कर में। अब देखना सिर्फ ये है कि कितनी देर बाद उसे कबूल करना है। वो चकराकर वापस बिस्तर पर लेट गया। उसे अब ये मजीद बातें नहीं सुननी थी, मगर गैर इरादी तौर पर वो उसी के मुतालिक सोचता चला गया। दूसरी जानिब जब अमरोज घर वापस आया तो बार बार उसे माहीन का ही ख्याल आ रहा था। उसने वाकई में ये सब अच्छा नहीं किया था। वो उस दिन ज़ोबिया से मिलने हॉस्पिटल गया था। वो उसे पसंद करती थी, मगर अमरोज के लिए ये सिर्फ एक वक्ती बहलावा था। वो किसी लड़की को भी आज तक पसंद नहीं कर सका था। उसे बस लड़कियों के इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता था, लेकिन जब कोई लड़की उसके बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती तो वो सुकून से पीछे हट जाता, या कोई ऐसी बात करता कि वो लड़की ही दूर हो जाती। ऐसे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस फ्लर्ट तक ही महदूद रहता था। उस रात जब ज़ोबिया ने उसे बुलाया तो उसने साफ साफ सोच लिया था कि वो इस लड़की से ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि कुछ दिनों से वो देख रहा था कि ज़ोबिया उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। सो वो फटाफट जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती तो वहाँ से निकल जाता। उसने अपने प्लान के मुताबिक अच्छा सा जोड़ा पहना और हॉस्टल से बाहर चला गया। वहाँ जाकर उसने ज़ोबिया को फ़ोन किया और बाहर बुलाया। वो बाहर आया तो उसने बड़े अल्फाज में कहा कि मेरा निकाह है, सो मैं वहाँ जा रहा हूँ। हमारे दरमियान जो कुछ था वो अब ख़त्म हो चुका है। मगर ज़ोबिया के चेहरे की रंगत बिल्कुल नहीं बदली। वो बड़े सुकून से खड़ी उसे देखती रही, फिर नरमी से बोली, ठीक है चले जाना, मगर जो इतना अरसा मेरे साथ रहे हो, क्या उसका कर्ज नहीं चुकाओगे तुम? मतलब? अमरोज ने हैरानी से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा, पता नहीं फिर मुलाकात होती है या नहीं। मैं चाहती हूँ बस मेरे साथ 5 मिनट बैठ जाओ, सुकून से, खामोशी से, ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। देखो ज़ोबिया, इन सब का वक्त नहीं है। देखना है तो यूं ही देख लो, मैं 5 मिनट तक जाता हूँ, मगर अंदर नहीं जा सकता। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकते? चलो अंदर, बैठने का तुम्हें एक बहाना ही दे देती हूँ, एक गिलास जूस का तो पी ही सकते हो। मगर अमरोज ने कुछ कहना चाहा, मगर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला और अपने साथ ज़बरदस्ती हॉस्टल के पीछे गेट से अंदर ले गई। वो हिचकिचा रहा था,
मगर जब अंदर गई तो देखा उस तरफ काफ़ी सारे लड़के थे, यानी लड़कियां रात को उन्हें छुप कर बुला लेती थीं। अमरोज़ ने 1-2 मरतबा मना करना चाहा, मगर ज़ूबिया ने उसे खामोश करवा दिया और कहा, चलो मेरे साथ, ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। वो कमरे में आया तो वहाँ पर कोई नहीं था, सो खामोशी से एक तरफ बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कर उसने बड़ी गलती कर दी है। वो चाहता तो बाहर से भी जा सकता था। ज़ूबिया उससे कोई ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थी ना, जिससे वो भाग नहीं सकता था। वो उठने लगा तो वो जूस ले आई और अपने हाथों से उसे पिलाने लगी। उसने मना करना चाहा, मगर वो ये सब कुछ ज़बरदस्ती कर रही थी। जूस पीते ही उसे चक्कर आने लगे और वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। ये देखते ही ज़ूबिया उसके करीब आई तो अमरोज़ ने उसे पीछे झटकना चाहा, मगर वो नरमी से ये कहते उसके करीब आ गई, बेशक निकाह किसी और से कर लो, मगर सुहाग रात तो मेरे साथ मना लो। इससे पहले कि वो उसे रोकता, ज़ूबिया उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। अमरोज़ ने अपना सर पकड़ते उसे एक जानिब धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आया। इतने हवास बाख्ता होने के बावजूद उसने ये ख्याल ज़रूर रखा कि कमरे से बाहर आते उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी। कुंडी लगाकर वो थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा कि तबीयत अब बहाल होती है, मगर ऐसा ना हो सका। वो वहीं नीचे फर्श पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उठा तो आंखें बंद हो रही थी। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा उसने बजाना चाहा ताकि पानी पी सके, मगर सामने माहीन ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर ही चला गया। वो लड़की उसे कुछ कह रही थी, मगर वो बहुत बोझल हो रहा था। बैरूनी कोई आवाज़ भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वो जाकर उसके बिस्तर पर बैठा और इशारे से पानी मांगने लगा, मगर माहीन ने आओ देखा ना ताओ। फौरी पहले तो उसे कमरे से निकालने की कोशिश की, जिस पर अमरोज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी वो उसे रोकना चाह रहा था। ऐसे मत करो, मगर उसने कुछ और ही समझा। फिर पास पड़ा गुलदान हाथ में आया तो उसने वो रख कर अमरोज़ के सर में दे मारा। आखिरी मंजर जो उसने देखा था वो माहीन का चेहरा था, जिसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। उठ जाओ, देखो मरना नहीं। इतनी तकलीफ के बावजूद बेहोश होने से पहले अमरोज़ को बहुत हंसी आई थी कि अजीब लड़की है। अब वो घर आया तो तब भी माहीन ही उसके दिमाग में बैठी थी, जिसे उसने फ़ौरन से झटक दिया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि अपना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसके दिमाग के साथ साथ दिल में भी बैठ गई थी। कुछ महीने गुजरे तो एक दिन वो ऐसे ही कहीं जा रहा था जब अचानक से उसे सड़क पर काफ़ी रश दिखाई दिया। उसने आगे होकर देखा तो सामने माहीन खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद रोहासा हो रहा था, जैसे कुछ बुरा हुआ हो उसके साथ। अमरोज़ जल्दी से उसके पास गया और पूछा, क्या बात है, परेशान लग रही हो? वो उसे जल्दी से देखकर बोली, मेरा बैग लेकर कोई चला गया है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अमरोज़ को हैरत हुई, क्योंकि कराची में ऐसे ही आए रोज़ वाक़यात होते रहते थे। अब अगर एक और वाक़या हो गया तो उसे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था। अमरोज़, उसमें मेरी आईडी है, मेरे पेपर्स हो रहे हैं CSS के। मैं 3 पेपर्स दे चुकी हूँ, कल भी पेपर है। आईडी ना हुई तो मैं नहीं जा सकूँगी। ये कहकर वो जो खुद को इतनी देर से रोके हुए थी, सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। अमरोज़ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जल्दी से माहीन का हाथ पकड़ा और अपने साथ गाड़ी के पास ले आया। इस सारी सूरत हाल में वो इस कदर परेशान थी कि उसे एहसास ही ना हुआ था अमरोज़ ने उसका हाथ थामा हुआ है, वरना उसके मुंह पर भी एक कदर थप्पड़ ज़रूर पड़ जाता। अब बताओ सारी बात, अमरोज़ ने पूछा तो वो रोते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही थी, बस 2 लड़के आए और मेरा बैग छीन लिया। मैंने सबको कहा, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो बात करने के साथ साथ अब अपने आंसू भी साफ कर रही थी। अच्छा परेशान ना हो, हम ढूंढ लेते हैं, समझ रही हो, कोई मसला नहीं, मिल जाएगा। मैं भाई से कहता हूँ, उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ढूंढ देंगे। इस पर वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, अपने भाई से मत कहना, मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था, मुझे नहीं लगता वो मेरी मदद करेंगे। उस दिन भी मेरा मजाक बना रहे थे। मुझे बस तुम किसी तरह से दिला दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। मुझे बाद में पता चला था कि ज़ूबिया तुम्हारे साथ ज्यादती करना चाहती थी।
वो रोती जा रही थी, साथ साथ जो कुछ दिल में था वो भी कह रही थी, जबकि अमरोज हाथ बांधे अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसकी बात सुनने में मगन था। मगर तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मदद कर दूंगा मैं तुम्हारी? अमरोज ने मजा लेते पूछा तो वो फटाफट बोली, भूल जाओ ना, मुसलमान ही मुसलमान के काम आता है। मैं बता रही हूँ ना, उस वक्त मैं घबरा गई थी। मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ था शहर आए तो ये सब हो गया। मगर तुम्हारी भी गलती थी, बदतमीजी से मेरे कमरे में आ गए। लेकिन अब इन बातों का वक्त नहीं है, कुछ करो। अमरोज उसकी हालत से मज़ा उठा रहा था। उसे याद आया तो पूछा, भाई को थप्पड़ मारा था तुमने? मगर कब? मुझे तो नहीं पता इस बात का। इस पर वो जल भून कर बोली, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब। वो लड़ने आए थे मुझसे, मेरा हाथ पकड़ा, मैं जाने लगी तो बस फिर मुझे गुस्सा आ गया, सबके सामने मैंने थप्पड़ मार दिया। अमरोज को शदीद हंसी आई। तभी उस दिन भाई ऐसे आग बगोला हो रहे थे, और वो नाक पर जो उन्होंने मुक्का मारा था वो भी इसी वजह से मारा था। अमरोज खड़ा कड़ी से कड़ी मिला रहा था। अच्छा कोई नहीं, इतने भी जालिम नहीं है वो, मदद कर देंगे तुम्हारी। मैं अभी बात करता हूँ उनसे। नहीं करेंगे, माही ने कहा तो वो हैरत से बोला, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं जिस चीज़ को भी छू लो इस बेचारी का नुकसान होता है। हाँ ये बात तो सही है। अमरोज ने अपना बेसाख्ता उम्र आने वाला कहका जब्त किया। रहने दो, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। तुम्हारा शहर ही गंदा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। उस दिन भी जाने लगी थी मगर शैला ने रोक लिया। आज सुकून से अपने घर तो बैठी होती। क्या तुम पहले भी इतना ही बोलती थी या अब ज्यादा बोलना शुरू हुई हो? अमरोज ने संजीदगी से पूछा तो वो मुंह बनाकर वहां से जाने लगी, जिस पर वो जल्दी से माफी मांगता बोला। इब्तिहाज को फोन करने लगा। उसने पूरी सिचुएशन बताई और जगह भी, जिस पर इब्तिहाज ने पूछा, किस लड़की की आईडी है, नाम बताओ। भाई वो बाद में बात करते हैं, बस आप ढूंढ कर मुझे दे दे। एक बेयारो मददगार लड़की है, और हाँ आईडी खोलिएगा नहीं, किसी की पर्सनल भी हो सकती है। अमरोज सुधर जाओ तुम्हारी ये दोस्तें मुझे बड़ी महंगी पड़ती हैं। इब्तिहाज ने संजीदगी से कहा तो अमरोज की जबान फिसली। महंगी पड़ती हैं या मार पड़ती है? क्या कहा? इब्तिहाज ने पूछा तो वो जल्दी से फोन रख चुका था। मैंने मना किया था उससे मत कहो, नहीं करेगा वो कुछ। माहीन फिर से बोली तो वो नरमी से बोला, ये तुम्हारा मसला नहीं है, चलो आओ कुछ खिलाऊं, खाना खाया है? माही ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करता ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो मुंह बनाकर बाहर ही खड़ी थी। अगर ऐसी वैसी लड़की होती तो तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा मैं खुद खोलता। नहीं हो तभी खुद दरवाज़ा खोलो। बैठो और खाना खाकर वापस चली जाना। सिर्फ ख्याल कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। देख लो मेरा सर फाड़ा था तुमने, उसके बावजूद तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मान जाओ। वो खामोशी से बैठ गई तो अमरोज उसे खाना खिलाने ले गया। खाने के बाद बिल आया तो वो संजीदगी से बोला, चलो भाई बिल निकालो अपना, 2 पैसे। हालांकि वो जानता था कि उसके पास बैग नहीं है। मैं कैसे दूं? माही ने अभी इतना ही कहा था कि वो जल्दी से बोला, क्यों, तुम तो ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, और ऐसी वैसी लड़कियों के बिल लड़के देते हैं। सो तुम नहीं हो तो बराबर का बिल निकालो, शाबाश। अमरोज मेरा बैग चोरी हो गया है, उसने दांत चबाते कहा तो वो जल्दी से बोला, ठीक है आज दे रहा हूँ, अगली दफ़ा मेरा बिल तुम दोगी। और तुम्हें क्यों लगता है अगली दफ़ा मैं आऊँगी तुम्हारे साथ? मतलब परस्त, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना, इतने जब बैंक मिल जाए तो। ये नहीं कहती कि शुक्रिया के लिए एक ट्रीट दे दूंगी। अमरोज जल भुनकर बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, वैसे भी तमीज़ से रहो मेरे साथ, मैं मुस्तकबिल की कमीशन ऑफिसर हूँ। जाओ जाओ, बहुत देखी हैं तुम्हारे जैसी। अब दोनों बैठे यूं लड़ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी जानिब इब्तिहाज ने पता किया तो उसे वो बैग थोड़ी ही देर बाद मिल गया।
इतना हाई फाई शख्स था तो कैसे उसके एक फ़ोन कॉल पर काम ना होता। बैग उसके ऑफिस में पड़ा था। उसने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अमरोज़ किस के लिए ये काम कर रहा है ये जानने के लिए उसने बैग खोला तो आगे से माहीन की आईडी निकली। ये देखकर उसे खुशगवार सी हैरत हुई और अजीब भी लगा कि अमरोज़ क्यों उसके लिए ये सब कर रहा है। उसने फ़ोन करके अपने पास बुलाया और बात पूछी तो अमरोज़ ने सारी बात बता दी, वरना इब्तिहाज तो उसे 2-3 मुक्के मज़ीद मारने के लिए बेताब था। जाओ, मैं खुद दे दूंगा, पक्का? अमरोज़ ने हैरत से पूछा। क्यों, मैं क्यों नहीं दे सकता? इब्तिहाज ने नासमझी से पूछा, जबकि अमरोज़ जल्दी से बोला, आपको कोई मसला तो नहीं है? अपने दिमाग में वो थप्पड़ वाली बात याद करते वो मुस्कुराया तो इब्तिहाज ने नफ़ी में सर हिलाया। अमरोज़ भी कंधे उचकाकर वहाँ से चला गया। उसने माहीन को वो बैग दिया तो वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रही थी। उसने माफ़ी भी मांगी तो इब्तिहाज जल्दी से बोला, अपने पेपर्स के बाद मिलना, मुझे बात करनी है तुमसे। तब उस मौजू पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अमरोज़ भी ऐसा ही कह चुका था। ये दोनों भाई अजीब से हैं। माहीन ने हैरत से सोचा। अमरोज़ से एक मरतबा उसकी मुलाकात हो चुकी थी। जब वो इब्तिहाज से मिली तो वो संजीदगी से बोला, पिछले दिनों और महीनों में जो गलत फहमियाँ हुई हैं उन्हें एक तरफ करके मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सोचोगी इस मुतालिक। वो हैरानी से मुंह खोले उसे देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और कहा वो सोच कर बताएगी। इब्तिहाज घर वापस आया तो अमरोज़ बड़ा खुश लग रहा था, बड़े अंदाज से तैयार हो रहा था। कहाँ की तैयारी है भाई? इब्तिहाज ने हैरानी से पूछा तो वो जल्दी से बोला, भाई आप हमेशा कहते थे ना किसी एक लड़की के साथ सीरियस हो जाओ, तो हो गया हूँ सीरियस। तो वो मान गई है? इब्तिहाज ने बात काटी तो वो जल्दी से बोला, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, बस प्रपोज करना है उसे और अब उसी से शादी करनी है। हैरत है, मैंने भी आज किसी को प्रपोज किया है। अमरोज़ एकदम से खुश हो गया। किसको? इब्तिहाज खामोश रहा तो वो उसकी मिन्नतें करने लगा, बताए ना, पहले तुम बताओ कौन है वो। मगर अमरोज़ टाल गया और बोला, आप बताएं कौन है वो? माहीन। वो एक लफ्ज़ था या कयामत का सूर? अमरोज़ अंदाज़ा नहीं कर पाया। उसका हाथ एकदम से पहलू में आन गिरा। तो क्या कहा उसने? अमरोज़ का लहजा एकदम से सपाट हो गया। कहना क्या है, सोच कर बताएगी, मुझे उम्मीद है मान जाएगी। अमरोज़ ये कहकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। तो पीछे इब्तिहाज हैरत से बोला, इसे क्या हुआ? जबकि अमरोज़ जानता था कि इस वक्त वो कितनी बड़ी क़यामत से गुजर रहा है। आज वो माहीन को ही प्रपोज करने वाला था, मगर भाई। उसने रिंग वाली डब्बी खामोशी से कबर्ड में रख दी, क्योंकि अब अगर माहीन भाई से शादी ना भी करती तो वो उसे प्रपोज नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद इब्तिहाज ने बताया कि माहीन मान गई है, जिस पर अमरोज़ ने उसे मुबारकबाद दी और बहुत खुश होने का ड्रामा किया। मगर वो खुश भी था। चलो, ऐसी लड़की उसकी बीवी ना सही, कम से कम उसकी भाई की ज़िंदगी में तो आ रही है।